بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے پر شہریوں میں نگران حکومت کے خلاف شدید غم و غصہ اور مایوسی پائی جا رہی ہے۔ مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے ستائے عوام حکومت سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں جھنگ سے ہمارے بیورو چیف عمران گل سے۔ جی بالکل، نگران حکومت نے اتحادی حکومت کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اب پاکستانی عوام کا جینا دوبر کر دیا۔ کبھی بجلی کے بلوں میں بے تحاشا ٹیکسز، کبھی گیس کی قیمتوں میں اضافہ، ساتھ ساتھ ایک ماہ کے اندر 3 مرتبہ پیٹرول کی قیمت کو بڑھا دیا گیا۔ 26 روپے پیٹرول کی قیمت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اس پیٹرول پمپ کے گرائے جانے کے بعد شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی سر، بہت شکریہ۔ آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ مطلب یہ انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور دن بدن جو ہے نا پیٹرول کی قیمتیں جو ہے نا وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تو جیسے پیٹرول کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو آٹومیٹک جو باقاعدہ چیزیں ہیں اشیاء خورد نوش ہیں تو ان کی بھی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ غریب آدمی کا جینا بھی محال ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں، عمران خان کے ہم برا بھلا کہتے تھے تو اس نے پوری اپنے دور حکومت میں 3.5 سال میں مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے 50 روپے منیمم اس نے بڑھایا ہوگا۔ تو یہ تو راتوں رات ریٹ بڑھا دیتے ہیں، مطلب رات کو پتہ چلتا ہے کہ ریٹ اب اپ ہو رہا ہے، کبھی 20-25 بڑھا دیتے ہیں تو کبھی 50 بڑھا دیتے ہیں۔ تو ابھی تک تقریباً مجھے جہاں تک حالات معلوم ہو رہے ہیں یہ تو 500 بھی اوپر چلا جائے گا ریٹ۔ تو خدا را مہربانی کریں، عوام پر مہربانی کریں۔ غریب کے لیے تو 2 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے شہریوں کے اندر بہت زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے۔ شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کو فی الفور واپس لیا جائے۔ جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو احمد پور سیال کے شہریوں نے بھی مسترد کرتے ہوئے اسے عوام پر بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ چودھری محمد اسلم طاہر کی رپورٹ میں تفصیلات جانتے ہیں۔ عوام ابھی پیٹرولیم مصنوعات کے بڑھے ہوئے سابقہ نرخوں کی تاب نہیں لائے تھے کہ ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر کے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے دام پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے پر احمد پور سیال کے شہری بھی سراپا احتجاج ہیں۔ پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ اس وقت غریب عوام جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، نہ کہیں آ سکتی ہے نہ کہیں جا سکتی ہے۔ سبزی کا کام ہے، اس کے اندر دن کا 2 لیٹر پیٹرول لگتا ہے، لیکن اب دن کا 2 لیٹر پیٹرول جس کے 1000 روپے دیہڑی ہو وہ اگر 700 کا پیٹرول ڈلوا لے تو اس کو کیا بچے؟ 300 روپے۔ گھر کا نظام چلائے کیا چلائے؟ جو غریب عوام ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے، آنا جانا پڑتا ہے کہیں بھی، کوئی بھی کنوینس ہے، یہ موٹر سائیکل بہت ضروری ہے، موٹر سائیکل کے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اتنا پیٹرول مہنگا ہوتے ہوئے جو 50 روپے کا دے بھی نہیں رہے، 80 روپے سے کم نہیں دے رہے، غریب اب کیا کرے عوام؟ یہ تو بیٹھے اپنے 300 یونٹ کر کے وہ بجلی کا بل بھی ہمیں دینا پڑتا ہے، سب کچھ ہمیں دینا پڑتا ہے، یہ تو اتنے ٹیکس لگا کر بیٹھے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی جڑ ہے، کیونکہ اس اقدام کی بدولت اشیاء خورونوش اور دیگر ضروریات زندگی کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر قیمتوں میں اعتدال لایا جائے۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ محکمہ زراعت سمندری نے چھاپہ مار کر 220 بیگز یوریا برآمد کر لیے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت حافظ عدیل کا کہنا ہے کہ کھاد قبضے میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یوریا کھاد کے بیگ سرکاری ریٹ پر کسانوں کو فروخت کیے جائیں گے۔ شہر لاہور میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ تھانہ شاد باغ کی حدود میں بینک سے رقم نکلوا کر آنے والے شہری کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو شہری سے اسلحے کے زور پر 8 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ فوٹیج میں ڈاکوؤں کو واردات کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکو واردات کے بعد بآسانی فرار ہو گئے۔ متاثرہ شہری کی جانب سے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دے دی گئی، تاحال مقدمہ درج نہیں کیا جا سکا۔ ڈی آئی جی موٹر وے سید حشمت کمال نے کہا ہے کہ پولیس افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ اولین ترجیح ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹریننگ کالج شیخوپورہ میں منعقدہ ایک اجلاس میں کیا۔ شیخ امتیاز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔
DIG मोटरवे सैयद हशमत कमाल की ज़ेर सदारत मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें SSP नदीम खोखर और डिप्टी कमांडेंट आतिफ शहजाद भी सिलेबस रिव्यू इजलास में मौजूद थे। DIG मोटरवे सैयद हशमत कमाल ने कहा कि ट्रेनिंग सिलेबस को जदीद तरीन रुझानात से आहंग करना वक्त की जरूरत है। पुलिस अफसरान की पेशावराना सलाहियतों में इजाफा अवलीन तरजीह है। ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा की तरबियत याफ्ता अफसरान ही मोटरवे पुलिस की पहचान है। अपने अपने शोबों में कमाल महारत रखने वाले अफराद को ट्रेनिंग कॉलेज में मदऊ किया जाता है। ज़ेर तरबियत अफसरान के साथ प्रोफेशनल अफराद का सेशन उनकी सलाहियतों में इजाफा करता है। शकरगढ़ के सैकड़ों छोटे बड़े देहात और कस्बात को शहर से मिलाने वाला नाला डेयर का पुल खस्ताहाली का शिकार, किसी भी वक्त बड़े साने के रुनमा होने का सबब बन सकता है। हसन शेख की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। शकरगढ़ इखलासपुर रोड पर कदीमी नाला डेयर पर पुख्ता पुल 50 साल पहले महकमा शहरात पंजाब ने तमीर किया था। ये पुल तहसील शकरगढ़ के सैकड़ों नवाही और सरहदी छोटे बड़े देहातों कस्बात के अवाम को शकरगढ़ शहर तक सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए बनाया गया था, जिसका इफ्तिताह उस वक्त के मशीर मवासलात हुकूमत पंजाब मेजर जनरल रिटायर्ड कमर अली मिर्जा ने किया था। 50 साल पहले जायद का अरसा गुजरने के बाद अब ये पुल इंतहाई मकदूर सूरत हाल से दो चार है। खदशा है कि खुदा न ख्वास्ता कहीं ये पुल किसी भी वक्त किसी बड़े साहनिया का मौजब न बन जाए। नाला डेयर के इस पुल पर से रोजाना की बुनियाद पर हैवी ट्रैफिक समेत हजारों छोटी बड़ी गाड़ियों का गुजर होता है। पुल के इतराफ में तमीर किए गए हिफाजती जंगले टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। पुल की बुनियादें हिल चुकी हैं, लेकिन इंतजामिया इस हकीकत के बावजूद खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों ने आला हुकाम से पुल की फौरी तमीर और मुरम्मत का मुतालबा किया है। भलवाल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां शुरू हो गईं। इंतज़ामिया और उलमाए कराम की मुश्तरका कमेटियों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। भलवाल से नुमाइंदा स्पेशल टीवी चौधरी राशिद महमूद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान तरीके से मनाने के सिलसिले में जमात अहले सुन्नत का एक अहम इजलास प्रेस क्लब रजिस्टर्ड भलवाल में मुनक्किद हुआ। इजलास सदर जमात अहले सुन्नत पीर आमिर असलम शाही कादरी और जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद फैयाज की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में मौलाना मोहम्मद अनवर रजा, मौलाना मोहम्मद शफीक जाहिद और दीगर उलमाए कराम के अलावा सदर मरकजी अंजुमन ताजरान मिर्जा खालिद रमजान, असिस्टेंट कमिश्नर सुफियान दिलावर, DSP मियां वकार अहमद और सहाफ़ी बरादरी में रिजवान अहमद सागर, मलिक मोहम्मद इकबाल, इकराम चौधरी, मोहम्मद अफजल जट, हाजी जुल्फ़कार अली भुट्टो, कमरुज़्ज़मान इनकलाबी और मोहम्मद आसिम ने शिरकत की। इजलास में जुलूस के रूट, स्ट्रीट लाइट, सफाई सुथराई, तकरीरी मुकाबला जात के इनेकाद के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सुफियान दिलावर का कहना था कि 12 रबीउल अव्वल सरकार की आमद का दिन है। इंशाअल्लाह इस दिन को मनाने के लिए भरपूर इंतजामात किए जाएंगे और इस सिलसिले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौका पर DSP मियां वकार का कहना था कि जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे और जुलूस को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी, जिस पर जमात अहले सुन्नत के उलमाए कराम ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। पाक वतन की मिट्टी में अनगिनत शोहदा का खून शामिल है। शहादतों का ये सफ़र पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर अब तक जारी है। इन शोहदा में कई गुमनाम भी हैं, जिनमें से एक रावलपिंडी की तहसील कहोटा से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद हमेश अली कियानी हैं। वतन की खिदमत से सरशार इस नौजवान को पाकिस्तानी फ़ौज में शामिल होकर वतन के लिए शहीद होने का शौक़ था। हमेश पाकिस्तानी आर्मी में तो शामिल ना हो सका, मगर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से जारी तरक्याती मंसूबों पर काम करने की गर्ज से जनूबी वज़ीरिस्तान में चला गया। मोहम्मद हमेश अली कियानी ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में 17 जनवरी 2014 को FWO के ज़ेर साया एक तरक्याती प्रोजेक्ट की तकमील में मसरूफ़ थे, जब दहशतगर्दों की जानिब से अचानक हमला किया गया। इस हमले में पाक फ़ौज के मुतादिद जवानों समेत मोहम्मद हमेश अली कियानी भी शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। मोहम्मद हमेश अली कियानी शहीद के अहले खाना ने अपने एहसासात कुछ यूँ बयान किए। मेरा बेटा बहुत बहादुर था, दरुस्तान में गया, उधर ही शहीद हो गया है। मुझे कह रहा था कि अम्मी आप रोना नहीं है, मैं नहीं रोई। ये कि मेरा बेटा था, बस बहुत दुख है, सारा दिन दुख ही है। तो मुझे भी कह रहा था कि अम्मी मैं जाऊँगा, अभी वापस नहीं है, मेरी तैयारी कर लेना। अब इन बेटियों का कोई सहारा नहीं और मैं खड़ी होती हूँ।
ये सब रोते हैं, मैं नहीं रोती। बड़ी बात ये से मैं काम करती हूँ, मैं उस ला कभी भी नहीं आती। ये ना कहे कि हमारा बेटा एक था, कोई भी नहीं हमारा। नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करती हूँ। पहले भी इसकी फौज नाल बड़ी दिलचस्पी सी, बाणा रहना साहब में की फौज कद भर्ती कराओ, शौक हुई प्यार मिले, बस यही बाणा रहना था। फिर सीखिया, फिर उधर गया फौज में, उधर टच हुए, बहरहाल उधर कम करना दिया, दलेल सा दरिया नहीं, तो अल्लाह ने हुक्म उसकी शहादत न रुतबा भी मिलना सा। आज साड़ी फौज बहुत इंशाल्लाह इतनी की जो मैंने कुर्बानियाँ देनी। मेरा भाई मोहम्मद उमेश अली कियानी शहीद ने जो इस मुल्क के लिए जान दी है, और मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह पाक ने मेरे भाई को शहादत का मर्तबा नसीब फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई जो है वो वज़ीरिस्तान में शहीद हुआ था। बचपन में बहुत ज़्यादा आर्मी की तरह फ़ौजी बनता था, हमारे साथ खेलता था। पाकिस्तान आर्मी के साथ वज़ीरिस्तान में जो है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे मेरा भाई गया, और वहाँ पे ये वज़ीरिस्तान की सरज़मीन पे अल्लाह पाक ने उसको शहादत का मर्तबा नसीब फरमाया। सिंध में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशंस का सिलसिला कामयाबी से जारी है। ब्यूरो चीफ कराची फैयाज हुसैन की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। सिंध में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला कामयाबी से जारी है। ऑपरेशन के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर से बरामद शुदा सामान को भी कब्जे में ले लिया गया। सखर, खैरपुर, गोटकी और कंबर शदाद कोर्ट में बरामद शुदा सामान में 3,31,700 गंदम की बोरियां शामिल हैं। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी की 10,900 बोरियां बरामद हुई। खैरपुर, सिंगार और गोटकी से हासिल होने वाले सामान में 5,750 यूरिया की बोरियां शामिल है। आला हुकाम का कहना है कि मुल्क को मुआशी बुरहान से निकालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन और कानूनी कार्रवाइयों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। वज़ीरिस्तान के यतीम बच्चों के लिए पाक फौज का अहसन इक़दाम। पाक फौज के ज़ेरे साया उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी का क़याम 2011 में वाना वेलफेयर एसोसिएशन की मदद से ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में यतीम बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए किया गया। एकेडमी में कुल 650 तलबा ज़ेरे तालीम है। एकेडमी प्रेप से मैट्रिक तक की क्लासों पर मुश्तमिल है। तमाम तलबा को किताबें और स्टेशनरी मुफ्त फराहम की जाती है। एकेडमी में तलबा के लिए फ्री लंच का भी बंदोबस्त किया जाता है। दूर दराज इलाकों से आने वाले तलबा के लिए पाक फौज और FC की जानिब से हॉस्टल की सहूलत फराहम की गई है, जिसमें एक वक्त में 80 तलबा को रिहाइश की सहूलियात मुयस्सर हैं। उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी से वज़ीरिस्तान के हज़ारों तलबा मुस्तफ़ीद और फारिग तहसील हो चुके हैं। उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी वाना में हमारे पास 650 बच्चे, जिसको फ्री ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म सब कुछ दिया जाता है। उसके अलावा जिन बच्चों का दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ है, उसके लिए हमारे पास हॉस्टल मौजूद हैं। हमारे पास हॉस्टल में 80 स्टूडेंट हैं, उसको भी 80 बच्चे हैं हॉस्टल में। इसके अलावा ये 650 बच्चों को लंच भी दिया जाता है। सेकेंड टाइम फ्री ट्यूशन का भी हमने इंतजाम किया हुआ है यहाँ पर बच्चों के। चिल्ड्रन एकेडमी 2011 में इसका आगाज़ हुआ था। ये वावा के तावन से बना हुआ है, और जो हॉस्टल मेरे पीछे ये आर्मी की तरफ से हमें दिया गया है एज ए गिफ्ट के तौर पर। प्रेप से लेकर 10th तक 100% ये ऑर्फन बच्चे हैं, यतीम हैं, वार एंड टेरर की वजह से जिनके वालिदैन फौत हुए हैं। मेरे वाले साहब जो टारगेट किलिंग में शहीद हो गया, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। हाफिजाबाद के तालिब इल्म हसन अहमद ने तालीमी बोर्ड गुजरावाला के ज़ेरे एहतमाम होने वाले सालाना इम्तिहान FSC प्री मेडिकल में 1100 में से 1050 नंबर हासिल करके बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर ली। अपनी इस कामयाबी पर हसन अहमद का क्या कहना है, जानते हैं शफकत अली की इस रिपोर्ट में। हाफिजाबाद के होनहार तालिब इल्म हसन अहमद ने तालीमी बोर्ड गुजरावाला में पहली पोजीशन हासिल कर ली। इस बड़ी कामयाबी पर जहां हसन अहमद खुश हैं, वही उस्ताजा, वालिदैन और अहले इलाका भी खुशी से निहाल हैं। होनहार तालिब इल्म हसन अहमद का कहना है कि पढ़ाई में हमेशा सख्त मेहनत की, वालिदैन और उस्ताजा की दुआओं से अल्लाह ने आज इस कामयाबी से नवाजा है। हसन अहमद का कहना है कि वो डॉक्टर बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि जिसकी मेहरबानी से मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। इसके पीछे मेरे माँ बाप की दुआ है, उनका सपोर्ट है और सारे उस्ताज़ा की मेहनत है।
اب اس کامیابی کے بعد میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر بن کے میں اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں۔ سیالکوٹ تھانہ سمڑیال چک کھینا کے رہائشی شہری کو ادھار کی رقم واپس مانگنا مہنگا پڑ گیا۔ پنجاب پولیس کے اہلکار نے بزرگ شہری کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ پولیس پیٹی بند بھائی کو بچانے میں مصروف۔ ASI رضوان کے متعلق اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے پولیس ملازم ہونے کی آڑ میں علاقے میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ ورثاء نے انصاف کے حصول کے لیے وزیر اعلیٰ سے اپیل کر دی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔